So, good morning, everyone. And today we'll do the basics of AI, which is machine learning. And there's a very powerful software called Orange for doing that. I have sent you some data sets, but I keep on showing you this Venn diagram again and again so that you know the progression of AI. You know that how the progression of AI has started from machine learning to neural networks to deep learning to generative AI to agentic AI. And what we are today doing is machine learning, which is the prediction part. So as we have seen in the last few classes, the first generation of AI did only prediction. Then came generation, and now we are doing automation with agentic AI. So we have skipped the machine learning part, which I think Neetu madam have done in the very first class. We'll today do machine learning with AI. And the part of machine learning is prediction of something which is not known to you. और उसके लिए let me show you one data set which I have already given to you. This is the data set which I have already given to you on the WhatsApp just now. Or what is the thing that we do in machine learning and deep learning is we take care of the training of the model ourselves. We train the algorithm with the particular data set. और इसमें हमने आपको क्या दिया है, एक डेटा दिया है जिसमें only one dependent variable is there usually and many are independent variables. Dependent variable is one that we are trying to predict. In this case, we are trying to predict the drug effectiveness, whether the drug was effective or not. And whether the drug is effective or not is based on all these parameters. First is age of the individual, BMI, blood pressure, cholesterol, glucose, insulin, what is the milligram of the drug that he used, and number of days he took that drug. And finally the output, whether it was effective or not. So as we have seen in machine learning, हम क्या करते हैं, हम एक label data को machine को देते हैं. Label data क्या होता है, whose output is already known. So this is the label data because this is the label, the output, the target. This is already known to us. So this we give it to the machine, and the machine learns the pattern of the data. So as you can see, it is a very complex data set. इसमें how many independent variables are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A to H are independent variables which influence whether the person drug is effective or not. Like in the very first case, it is 1. That means the drug is effective. 0 means the drug was not working. But it depends on your body. Body is very, very complex. So it can depend on age, it can depend on blood pressure, cholesterol, various factors. And this is the data which is already there with us, which is there with the doctor. And this is what we give it to the machine. What's the total size of data? 769 or 768. Total 768 patients on which lot of clinical trials were done on the drug. And the final output is also known. On some it worked, some it did not work. So what is the purpose of doing it? We are trying to teach the machine the pattern. कि किस पैटर्न पर ड्रग काम करता है, किस पैटर्न पर ड्रग काम नहीं करता, so that when we give a machine a new data, we'll give the data only from A to H. I will be unknown. एक मैंने आपको टेस्ट डेटा भी दिया है, उसमें I is unknown. The machine will start predicting whether the drug is going to be effective or not. That is what is machine learning. And here what is the target variable? Target variable is 0 or 1. There are only two states. Drug is effective or not effective. You will pass in exam or fail in exam. Loan मिलेगा कि नहीं मिलेगा. When the target variable is 0 and 1, this is called classification algorithms. और जब target variable number है जो change करता रहता है, that is called regression. So today we are looking at classification. जितना भी health care data होता है, 80% to 90% is classification. Heart attack होगा कि नहीं होगा, डायबिटीज़ होगा कि नहीं होगा,
कैंसर होगा कि नहीं होगा. These are all classification. So let us see a little bit about classification and what exactly are we trying to do here. And of course, please stop me wherever you have any doubt because ये थोड़ा सा important है concept. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं नॉन लीनियर. नॉन लीनियर का मतलब है आउटपुट इज इधर 0 और 1, सो इट इज़ नॉट लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. आप कुछ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दे दो, आउटपुट या तो 0 होगा या 1 होगा. लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि वेन एवर यू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आउटपुट कीप्स चेंजिंग, सो वी सर्च फॉर ए लीनियर रिलेशनशिप. लाइक इफ x is increasing, y is increasing proportionately or not. If the proportional is linear, that means significant proportional increase or decrease, it's called linear relationship. पर classification में कोई linear relationship नहीं होता. Output या तो 0 आता है या 1 होता है. That's why it's called non-linear. And that is why it is very very difficult. For example, आपको कैंसर होगा कि नहीं होगा, positive negative sentiments, and here there are 4 outputs. So let us look at this data. This is one data, this is another data. This is independent variable 1, this is independent variable 2. X-axis is first independent variable, y-axis is second independent variable. Let's say x-axis is BMI and y-axis is BMR. And this output that is given is whether the person is going to have a heart attack or not. So we have got two states, heart attack हुआ था, heart attack नहीं हुआ था. For example, red heart attack नहीं हुआ था based on this BMI and this BMR. Blue heart attack नहीं हुआ था. तो machine can learn from this data very easily. ये एक basically linearly separable data है. So if you have a function which is a straight line function, वो blue और red को identify कर देता है, separate कर देता है. So we are always looking at a function which can identify the pattern of the data. Machine learning is nothing but lot of algorithms. These are various functions. Like this straight line is a function. This S is a function called sigmoid function. So there are various functions are there. The second graph, sigmoid, is called logistic regression. The first one is called linear regression. और थर्ड कोई फंक्शन ही नहीं है, वो खुद जनरेटेड है. क्या फ्लक्चुएशन होता रहता है. लीनियर रिग्रेशन, स्ट्रेट लाइन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सिग्मॉइड, और यहाँ पे 3 क्लासेस हैं एंड दिस कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन. सो सच फंक्शंस आर वेरी इजी. अगर आपका डेटा इतना सिंपल आ जाए तो आप सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दो, इजीली पैटर्न को आइडेंटिफाई कर देगा. बट नाउ लुक एट दिस फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, if I want to show you this function, this data set, now look at this data set. इसमें basically what is the output? Target variable is heart condition. 2 conditions are given, critical or mild. Heart attack critical हुआ था या heart attack mild हुआ था, based on age, blood pressure and cholesterol. Again label data. So the doctor knows कि उसको heart attack हुआ था या mild हुआ था. अगर मैं इसको function को map करूँ same data को, डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट ये ऐसा भी फंक्शन हो सकता है. एक एक्सिस में मैं एज ले लेता हूँ सबका, दूसरे में ब्लड प्रेशर ले लेता हूँ, एड येलो वंस इन दोज केसेस जहाँ माइल्ड हुआ था, दिस क्रिटिकल हुआ था. कैन वी सेपरेट दीज 2 क्लासेस? 2 क्लासेस आउटपुट, माइल्ड और क्रिटिकल, बेस्ड ऑन एज एंड ब्लड प्रेशर. कैन द मशीन आइडेंटिफाई द पैटर्न? येस, इट कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न बिकॉज these are very clearly separable. अगर मैं इसके बीच में एक plane डाल दूँ and that plane algorithm is called support vector classifier, then it can easily identify because these 2 classes are very very
separable and identification is possible. Now look at this data. इसमें फ़र्क क्या है पिछले डेटा से? What is the difference between this data and the previous data? Sorry, ma'am? 3D. Why it is 3D? Because 3 axis. No, that is correct. Because पिछले One data. more variable is there. Absolutely, madam. First, it was blood pressure and age, two independent variables. Now, when we increase one more independent variable called cholesterol, the data becomes three-dimensional. So, this is also called the curse of dimensionality. The moment you increase the independent variables, it increases the dimensions. It is not two-dimension anymore. Age is one dimension, blood pressure is another dimension, cholesterol is another dimension. All are mutually perpendicular to each other. Similarly, अगर मैं फोर्थ डायमेंशन यूज़ करूँगा तो एक और फोर्थ डायमेंशन आ जाएगा जिसको हम विजुलाइज भी नहीं कर सकते. फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ. एंड व्हाट इज दिस आउटपुट? दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. माइल्ड हार्ट अटैक, क्रिटिकल हार्ट अटैक. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस डेटा, cholesterol is 220, blood pressure is 160, and then I map it to age, which is let's say 55. So I can, it's a scatter plot. I can plot each of the point, और तीनों डायमेंशन में मेरे को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाते हैं. अगेन ये दोनों डेटा बड़ा क्लियरली सेपरेबल है. इफ आई ड्रॉ अ प्लेन इन बिटवीन, देन इट कैन आइडेंटिफाई दिस. बट व्हाट अबाउट दिस डेटा? सेम डेटा है बट डेटा सेट चेंज हो गया. एज, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, ब्लू इज जिनको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था, रेड इज जिनको क्रिटिकल हार्ट अटैक हुआ था. डू यू हैव ए फंक्शन विच कैन एक्चुअली सेपरेट दीज टू प्लॉट? हाउ विल द मशीन लर्न द पैटर्न? मशीन को हम दो ही चीज़ें देते हैं ना, एक एल्गोरिथम देते हैं और डेटा देते हैं. डेटा तो हमने दे दिया, कौन सा एल्गोरिथम देंगे जिससे मशीन ये पैटर्न को समझ पाएगा? It's very, very mixed. For example, you take these 2 points. ये दोनों एकदम पास पास हैं. Look at this point and this point, this blue and this red. इन दोनों का एज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ना दोनों पेशेंट का, पर एक को माइल्ड हुआ है और एक को क्रिटिकल हार्ट अटैक हुआ है. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट. एंड हाउ विल द मशीन नो? अब मशीन को क्या करते हैं, हम ये डेटा देते हैं और एक कोई एल्गोरिथम दे देते हैं. मशीन लर्न करता है इस डेटा का पैटर्न को, फिर हम नया डेटा देते हैं, एक नया पेशेंट जिसका सिर्फ हमें एज पता है, ब्लड प्रेशर पता है और कोलेस्ट्रॉल पता है, और हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अब प्रेडिक्ट कर इसको माइल्ड हार्ट अटैक होगा कि क्रिटिकल होगा. बट मशीन अगर पैटर्न ही नहीं समझ पाया तो वो एरर के साथ उसको आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मशीन लर्निंग. हमारे पास 7 या 8 मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ही हैं और हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं हर डेटा सेट के साथ. सो विच एल्गोरिथम इज गुड, विच इज़ बैड, डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा सेट. नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड. And the difference between this and deep learning is, in machine learning, the algorithms are fixed. In deep learning, algorithms are not fixed. We generate the function based on the complexity of the data. How? But I think main point is मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि data set is the most important thing here to apply a algorithm. This is simple machine learning. आपने क्या है, इनपुट भी दे दिया, आउटपुट भी दे दिया. इनपुट क्या था, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. आउटपुट क्या था, बाइनरी स्टेट. और एक एल्गोरिथम दे दिया विच इज़ दिस क्वेश्चन मार्क, और मशीन ने उसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी और करा. एंड देर आर फिक्स्ड एल्गोरिथम्स इन मशीन लर्निंग. दीज आर द फिक्स्ड एल्गोरिथम. बट इन डीप लर्निंग व्हाट हैपेंस, वी क्रिएट एन एल्गोरिथम. लाइक दीज आर ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दीज आर वेरियस लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स, एंड दिस आउटपुट. सो दिस इज अ डीप लर्निंग एल्गोरिथम दैट वी हैव क्रिएटेड विच इज 2 layers. और हर लेयर में कितने न्यूरॉन है, 4 न्यूरॉन है. और हर न्यूरॉन में हमने एक मैथमेटिकल फंक्शन फिक्स करा हुआ है. देर आर 4 फिक्स मैथमेटिकल फंक्शंस, फिक्स मैथमेटिकल फंक्शन. बट ईच ऑफ द फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अंडरस्टूड बाई ईच ऑफ द न्यूरॉन्स. लाइक दिस इज गोइंग हेयर, दिस इज गोइंग हेयर, दिस इज गोइंग हेयर, दिस इज गोइंग हेयर.
दैट मीन्स अगर BMI है तो दैट इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑल द न्यूरॉन्स, BMR एक्सट्रैक्टेड बाय ऑल द न्यूरॉन्स. द न्यूरॉन्स एक्चुअली अंडरस्टैंड द फीचर्स वेरी वेल एंड बेस्ड ऑन दैट वो एक आउटपुट देते हैं. वो आउटपुट हम मेजर करते हैं एक्चुअल आउटपुट से, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल आउटपुट तो था. इफ देर इज अ एरर वी टेक दैट एरर बैक हियर अगेन, एडजस्ट द वेट्स आर योर बीटा नॉट बीटा 1, फिर फॉरवर्ड लेके जाते हैं. एरर थोड़ा कम होगा पर एलिमिनेट नहीं होगा, एरर रहेगा, फिर बैकवर्ड लेके आएंगे. तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इपॉक्स. ऐसा 1000, 2000, 3000 टाइम्स हम फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं टिल द टाइम वी अचीव अ सिचुएशन बट द आउटपुट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रेडिक्टेड आउटपुट. और इसमें हम कई चीज़ें चेंज करते हैं. हमारे हमने बड़े सारे कंट्रोल्स हैं. हाउ मेनी लेयर्स यू कैन क्रिएट, you can define yourself. How many neurons in each layer, that also you create. What the function in each neuron, that also you will create. How many forward and backward you will keep doing, that also you will create. So these are called hyperparameters. So when we say hyperparameter tuning, when we are doing the learning of the data, deep learning ka, so we do the hyperparameter tuning. All these controls are there with us in deep learning. Machine learning में क्या था हमारे पास? कुछ भी नहीं था. दिस इज ऑल मशीन लर्निंग. एक फिक्स एल्गोरिथम, इनपुट आउटपुट. एरर है तो एरर है, हम बैकवर्ड तो ले ही नहीं रहे उसको. सो मशीन लर्निंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस. डीप लर्निंग ओवरकम्स दोस लिमिटेशंस. इन मशीन लर्निंग देर आर फिक्स्ड फंक्शंस. इन डीप लर्निंग वी क्रिएट द फंक्शन. नाउ हैविंग सेड दैट, लेट अस टेक दिस केस स्टडी. मैं अगेन आपको ये डेटा सेट दिखाता हूँ. हम इसमें कर क्या रहे हैं. दिस बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 768 कोहोर्ट ऑफ 768 पेशेंट्स. उन पे एक नया ड्रग ट्राई किया गया है और फाइनल हमको लेबल मिल गया है कि वो ड्रग उस पर्सन पे इफेक्टिव था कि नहीं था. इफ द ड्रग वॉज इफेक्टिव, दो ही स्टेट है, इफेक्टिव नॉट इफेक्टिव. ड्रग काम किया नहीं करा. इफेक्टिव मतलब 1, नॉट इफेक्टिव मीन्स 0. नाउ हु हैज़ एक्चुअली लेबल्ड दिस डेटा सेट? दिस इज डन बाय अ डॉक्टर जिसने टेस्ट किया हो कि ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ लेबल डेटा सेट, ह्यूमन लेबल डेटा सेट जैसा आप बोलते हो. तो 768 पेशेंट्स का ह्यूमन लेबल डेटा सेट्स है और दिस डेटा वी आर गिविंग टू द मशीन कि नाउ लर्न द पैटर्न विच आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिससे ड्रग इफेक्टिव होता है कि नहीं इफेक्टिव होता है. तो द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर: एज, BMI, ब्लड प्रेशर, drug dosage milligram, what is the content of the salt in that particular drug, कितने दिन तक उसने लिया वो, and finally the output. Once we learn the pattern, then we'll give the machine new data जिसमें A to H होगा, I नहीं होगा. I is what we are going to predict. That's how we are going to use AI for prediction. आपके मेजोरिटी रिसर्च पेपर ऐसी प्रेडिक्शन पे ही आते हैं वैसे. तो लेटेस्ट ऑरेंज अब तक सबका हो ही गया होगा और ऐसा एक स्माइलिंग सा फेस आ गया होगा आपके पास. तो लेट अस ओपन ऑरेंज. इट विल टेक लिटिल बिट टाइम बट इट डज ओपन अप. Sir, please choose another destination. You're saying please choose another destination. Another destination. It's already downloaded in this. It is already there, I think. So, but हमने उसको डिलीट करके भी देख लो. उसमें भी यही आ रहा है. अब तो इसमें एक ही बार है ना. आपका डेस्कटॉप दिखाइए जरा. एक्चुअली आइडियली इसको अपने लैपटॉप में करना चाहिए आपका. हाँ, इसको ओके कर दो. ओके, जस्ट ओके इट. इसमें है तो नहीं वैसे. नेक्स्ट 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 करते रहो. इसको डिलीट कर दिया था आपने, अनइंस्टॉल कर दिया था. ओके, विल सी इट बिकॉज थोड़ा टाइम लग सकता है. आपका ऐसा एक आप देख लो. इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली. आप एक ही में रन कर लो. आप जरा इसमें देखो जरा, ऑल ऑफ यू. आपका ये एक ऐसा एक स्क्रीन आएगा. दिस इज कॉल्ड ए डिज़ाइनर स्टूडियो. सो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट क्लोज दिस, मिनिमाइज दिस. ये इसको बोलते हैं डिज़ाइनर स्टूडियो. यहाँ पे आपका स्टूडियो जिसमें आप बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं. दीज आर वेरियस फंक्शंस.
These are various functions: data functions, transform functions, visualization, models, evaluation, unsupervised, supervised, text, finance. You can also download others function like add-ons में जाओगे तो आपको बहुत सारे और भी add-on widgets आ सकते हैं, text and all those things which we are not doing right now. So what we do, we drag a function to the studio and then give the data to it. या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करो या just take the use the 2 fingers of the mouse and drag the file here. Drag the file here. This is the simplest software to use. When you drag the file here, सबको हो ही गया होगा. And we'll repeat it. Don't worry, we'll repeat it. We want to get the data into this file. So we'll double click on the file. Just do double click. हो गया डबल क्लिक. यहाँ पे आपको एक डेस्कटॉप का फोल्डर दिख रहा होगा, फाइल फोल्डर. So I want to take the data from the folder inside Orange. So I'll double click on this file folder, which is your desktop folder. तो आपका डेस्कटॉप में ले जाएगा. नाउ आपने कहीं पे तो सेव किया होगा ना वो फाइल जो मैंने भेजा आपको, फार्मा डेटा सेट. हाँ, डाउनलोड में जाओ, गो टू डाउनलोड फोल्डर, वेरेवर. फार्मा वाला ही लेना है. हाँ, फर्स्ट टेक द फार्मा डेटा सेट. क्लिक ऑन फार्मा डेटा सेट एंड देन से ओपन. क्लिक ऑन ओपन हेयर and you will get something like this. Yes, sir. बड़ा सिंपल है ये. तो उसने क्या करा, उस एक्सेल शीट को, एक्चुअली इट इज़ अ CSV फाइल, उसने आइडेंटिफाई किया ऑरेंज ने, एंड इट हैज़ गिवन यू सर्टेन सिंबल्स, न्यूमेरिक एंड सी. न्यूमेरिक इज न्यूमेरिकल डेटा, सी इज कैटेगरिकल डेटा. कैटेगरिकल डेटा होता है टेक्स्ट डेटा लाइक मेल एंड फीमेल और 0 and 1. What orange sees is a data which is repeatedly patterns are changing. खाली या तो इसका स्टेट 0 है या 1 है. सो इसने आइडेंटिफाई ये न्यूमेरिकल डेटा हो ही नहीं सकता. इट हैज़ टू बी कैटेगरिकल क्योंकि 2 ही स्टेट है, 0 and 1. बट इट हैज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड दैट ऑल ऑफ देम आर फीचर. ऑरेंज डजंट नो विच इज़ अ टारगेट वेरिएबल एंड विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऑरेंज को नहीं पता, वो हमें बताना पड़ेगा. तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज आवर टारगेट वेरिएबल. Very great. Drug effective. So use this 2 fingers again and ये यहाँ पे feature लो and it will give you various scroll down function. Make it target. Drug effective को आप target बना दो. मशीन को बताओ कि ये मेरा लेबल, ये this is my target variable. Using the 2 fingers, just make it target. हो गया टारगेट. देन जस्ट डू अप्लाई एंड वंस यू डू अप्लाई यू कैन सिंपली क्लोज इट. इट इज ऑल सेव्ड. मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्लोज इट. नाउ वी हैव टेकन द डेटा इनसाइड दिस फाइल. लेट अस सी व्हाट इज देयर. सो टेक द कर्सर हेयर जहाँ पे आपके डॉट डॉट है एंड ड्रॉ डेटा पाइप. इट इज कॉल्ड ए कनेक्टर. यहाँ से दोनों ही फिंगर्स को यूज़ करो एंड जस्ट ड्रैग अ लाइन लाइक दिस. दिस इज अ कनेक्टर एंड लीव इट. डोंट डू एनीथिंग, जस्ट लीव इट फॉर सम टाइम. ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा. दैट कनेक्टर इज द डेटा पाइप विच टेक्स डेटा फ्रॉम वन विजेट टू अनदर विजेट. तो यह हमको बड़े सारे ऑप्शंस देगा. जस्ट टाइप डेटा टेबल हेयर. अगर आपका डेटा टेबल यहाँ पे नहीं भी दिख रहा, टाइप डेटा टेबल. Then just click on that data table. Data table आ गया आपका? Now double click on data table. So what do you see here? All variables. It is basically आपका डेटा सेट ही है जो ऑरेंज के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है. You got the data inside orange, बट यहाँ पे आपका ग्रे में आ गया ये. बिकॉज आपने उसको टारगेट आइडेंटिफाई किया था तो उसने उसको ग्रे में कर दिया और सबसे आगे रख दिया. बिकॉज यू आइडेंटिफाइड दैट एज द टारगेट.
Again close it. Now we have seen that the data, ये खाली हमने इसलिए किया था, we just want to see whether the data is properly incorporated from Excel file or not. Otherwise there is no purpose of this. Now again choose go to file and drag another pipe and leave it here. The very first step of machine learning and deep learning is we tell the machine which is independent variable and which is dependent variable, which is called feature selection. It's called feature selection. So just type select columns अगर आपका नहीं आ रहा. Select columns. Select columns. Yes. Once you do select columns, आपका सबका एक ऐसा आ गया होगा यहाँ पे. Now do double click here. And आप सबका ऐसा आया होगा, या जो ड्रग इफेक्टिव है, अगर वो टारगेट क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया होगा बन गया होगा, बन गया सर. और ड्रैग इट हियर. Already targeted. हाँ, क्योंकि आपने टारगेट उसको डिफाइन कर दिया था इसलिए. नाउ इन द स्टेट ऑफ फीचर सिलेक्शन व्हाट वी हैव सीन is when you increase the dimensions, it is not very good for the data because 4 dimensions, you can visualize the third dimension. Can you visualize 10 dimensions? So dimensions actually makes the data very complex. 10 spatial dimensions. इस डेटा में 8 independent variables हैं, तो 8 dimensions हैं. So it's called the curse of dimensionality. Usually हम क्या करते हैं, when we have such a data में 8-10 variable easily होते हैं, we try to reduce the data dimensions. We take all independent variables and see कि are some independent variables correlated, मतलब are they similar? If they are similar, they will not have the independent impact on the dependent variable. They have similar impact. तो हम उसमें से एक independent variable को निकाल देते हैं. To reduce the dimension, now is the chance to actually reduce the dimensions. So suppose I want to reduce the dimension, I will simply pick one and get it here. Pick one, get it here. But I am not reducing the dimension because all these are very important independent variables. तो मैं dimension reduce नहीं कर रहा. You have the option of ignoring certain independent variables which you feel are not very effective independent variables. For example, How do we feel that, sir? okay, there are various ways of doing it. एक है basically your domain knowledge. There are 10 variables. एक मैंने आपको churn का भी दिया है. Final dependent variable is person is going to leave or not leave. Churn yes or no. उसमें एक column है कि coffee is offered in the organization or not. One of the independent variables. Like वो मेरे को चाय दे के चला गया और आपको नहीं दिया. तो you can leave also. Ma'am can go and resign also because of this. This could be independent variable, but for others, this is not an independent variables. है ना मैम, अभी वेलबींग को इम्पैक्ट डाल रहा है, सबको कॉफी हाँ, but आपको बुरा लग रहा है, आप छोड़ थोड़ी दोगे, रिजाइन तो नहीं करोगे ना. सकते हैं सर. हाँ. So if you feel that this is also an independent variable, then take that. Coffee is served twice a day, thrice a day by the organization or not. If you feel this is a redundant thing, just ignore that. सर बट वन क्वेरी. Other way is that correlation matrix draw करो खाली independent variables का. When you see very high correlation between independent variables, then drop the independent variable. अभी तो जनरली सर फैक्टर एनालिसिस करते हैं. हाँ, इस फैक्टर बिल्कुल. तो इसमें मतलब इट इज चॉइस क्या. वो फैक्टर एनालिसिस सेम ही कर रहा है आपका. एंड इसको हम देर आर अदर कंपोनेंट ऑफ फैक्टर एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. वो 8 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 4 में कर देगा, 3 में कर देगा, like that. So factor analysis is being done here. The very simple thing that one should do is just look at the correlation matrix. But anyway, we are taking all the factors here. Drug effective is my dependent variable. Again, I'll close it. So this was the very first step. Select columns. In select columns, we have identified independent variables and dependent variable. Now, what is the second step of machine learning? हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल. अब क्या करें? रन द एनालिसिस. अब हमको ये सारा डेटा एक एल्गोरिथम को देना पड़ेगा. We have to choose an algorithm which is a statistical equation or a function and give this data to it. So let us choose an algorithm. Again, take the connector here, leave it,
and type logistic regression. Logistic regression gives a S-shaped function. लॉजिस्टिक रिग्रेशन आउटपुट आपका हमेशा 0 देता है. प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 से ऊपर होता है तो 1 होता है, 0.5 से नीचे होता है तो 0 होता है. सो दिस इज अ फंक्शन कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. हम क्लासीफायर्स यूज कर रहे हैं 0 और 1 के लिए. देयर आर 8 क्लासीफायर्स. नाउ एट दिस स्टेज व्हाट इज हैपनिंग? आपने एल्गोरिथम को डेटा दे दिया तो पैटर्न लर्न कर लिया. The algorithm is converted into something called a model. Logistic regression is an algorithm. Once you give the data to it, it has learned the parameters and now it is called a learned data model. It's a model now. Now let us test this model. इस मॉडल को टेस्ट करते हैं कि कितना इफेक्टिव ये मॉडल है. ये मॉडल बन चुका है, लर्न कर लिया उसने पैटर्न से. अगेन टेक द कनेक्टर, लीव इट हेयर and type predictions. Type predictions. Everybody has gone to do prediction. We are trying to test the model, but you have to give some data to the model. Usually क्या होता है in machine learning, there is a separate training data and separate testing data. जब भी आपको एक डेटा सेट मिलता है, आप यूजुअली उसको कन्वर्ट करते हो 70-30 के रेशियो में, समटाइम्स 80-20, depending on how large is the data set. Training data should be large. और randomly 30% डेटा निकालते हो, सीरियली नहीं, randomly. और खाली 70% ट्रेनिंग डेटा देते हो और मशीन लर्न करता है उस डेटा से, पर आप टेस्ट करते हो ट्रेनिंग डेटा से, वो 30% से. बट यहाँ पे हमने कोई सेपरेट नहीं किया. वी आर सेइंग कि लेट अस फर्स्ट ट्रेन द मॉडल विद 768 रोज ऑफ डेटा एंड टेस्ट ऑल्सो विद द सेम 768. ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा इज सेम. अब सारा का सारा डेटा कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहीं पे ना, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेग्रीगेटेड डेटा. तो आई विल नाउ टेक दिस डेटा फ्रॉम हेयर एंड गिव इट फॉर प्रेडिक्शन. अब टेस्ट कर रहा हूँ डेटा, आई एम टेस्टिंग द डेटा. वंस यू डू दैट, नाउ क्लिक हेयर, प्रेडिक्शंस. मैंने डेटा दे दिया ना पूरा का पूरा, सेम ट्रेनिंग डेटा आई हैव यूज्ड एज टेस्टिंग डेटा एंड गिव इट. Let the model predict. And now click on prediction. Do you get some output like this? Let us predict this output. The very first person, the very first row, patient number 1, उसका actual state क्या था? उसका actual state क्या था? 1 था ना इसका? What is the machine identify this as? 0. It is a wrong prediction. Of course, this gives the error. It gives you the probability outputs. You can see the probability outputs here. Classes in data करके वो आपको probability दोनों values का देगा. But इसको none करो. It is much simpler to do it none. Actually आउटपुट 0 नहीं आता, आउटपुट एक प्रॉबिलिटी आता है. आउटपुट आया तो उसका 0.455, तो एरर दैट्स व्हाई इट्स शोइंग 0.555. और क्योंकि 0.5 के नीचे हम बोलते हैं 0 है, 0.5 के ऊपर हम बोलते हैं 1 है, क्योंकि आउटपुट 0 और 1 का है. बट एक्चुअली वो एक नंबर प्रेडिक्ट करता है विच इज एनी प्रॉबिलिटी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. दीज आर ऑल प्रॉबिलिटी आउटपुट्स. फंक्शन एक प्रॉबिलिटी को आउटपुट देता है. तो दिस इज अ राइट प्रेडिक्शन और रॉन्ग प्रेडिक्शन? ये एक्चुअल ट्रूथ है, ये प्रेडिक्शन है. एक्चुअल द पर्सन हैड द ड्रग वाज इफेक्टिव बट द मशीन सेड कि ये पर्सन में ड्रग इफेक्टिव नहीं होगा, ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? करेक्ट प्रेडिक्शन. थर्ड वन रॉन्ग प्रेडिक्शन. सो यू कैन आइडेंटिफाई आउट ऑफ 768 हाउ मेनी आर रॉन्ग एंड हाउ मेनी आर राइट प्रेडिक्शंस. क्योंकि एक्चुअल लेबल तो आपके पास है ही, यू नो पर्सन को ड्रग इफेक्टिव हुआ था कि नहीं हुआ था. Out of 768, the correct predictions are all the zeros should be identified as zeros, all the ones should be identified as ones. 0 को आइडेंटिफाई करोगे 1 के लिए तो रॉन्ग है, 1 को आइडेंटिफाई करोगे 0 के लिए तो रॉन्ग है. 0 should be 0, 1 should be 1. So look at the accuracy of the model. Just look at only this, not bother about the rest one.
CA classification accuracy कितना आता है? Which is 58.5% is the accuracy of the model. How did this come? इस प्रेडिक्शन का आउटपुट में फिर एक कनेक्टर लो और यहाँ पे जस्ट टाइप कंफ्यूजन मैट्रिक्स, राइट? कंफ्यूजन मैट्रिक्स सबने कर दिया? आप तो इतना हाइपोथेसिस करते हो, आपको टाइप 1, टाइप 2 एरर तो करते ही रहते हो पूरा टाइम हाइपोथेसिस में। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, यू हैव हर्ड अबाउट दिस नेम? क्लिक ऑन कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्या दिखाता है आपको? टोटल डेटा कितना है? टोटल नंबर ऑफ 407, एक्चुअल 768 में 407 आर 0 and 260 or 361 are 1. So this is not a 100% balanced data set. Balanced data set typically 50-50 होता है, but generally it's like अगर मैं एक मशीन को 1000 का डेटा दे रहा हूँ और 900 डॉग्स हैं और 100 कैट्स हैं, तो मशीन will understand dogs better than the cats. So that is called an unbalanced data set. But this is a fairly balanced data set, equal number of zeros and 1. So actual number of zeros कितने हैं मशीन में? 407. Actual number of ones कितने? 361. But out of this 407, मशीन ने correctly identify किया है 284. This is the correct identification. 284 zeros have been correctly identified out of 407. This box is correct identification. Similarly, come to this box. Out of 361, only 165 ones have been identified as 1. Actual predicted. So ये correct है, ये correct है, ये incorrect है, ये incorrect है. So what is accuracy? बड़ा simple है. This plus this divided by everything. So when you say 284 plus 165 divided by 768, it will come to 58.5% accuracy. Is this clear how it is coming? Yes, sir. What are the wrong predictions? 196 actual ones have been incorrectly identified as zeros. 123 actual zeros have been incorrectly identified as 1. So the diagonals are correct predictions. So that's why it is coming 58.8%. So does it mean that logistic regression is a bad equation? No, it is not. It's just that वो hodgepodge data में it is not fitting very well. So we will try, that's why we do lot of trials in machine learning. We'll take one more equation here. Very simple equation हम लेंगे, decision tree. Again same process. आप ट्री ने लर्न कर लिए स्टेज में, डिसीजन ट्री, जस्ट टाइप ट्री, ट्री ने डिसीजन ने ट्री ने लर्न कर लिया स्टेज में. अब हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे, सेम डेटा को हम दे देंगे प्रेडिक्ट करने के लिए. एंड नाउ लुक एट द प्रेडिक्शन. अगेन यू कैन आइडेंटिफाई zeros 1 0 1 मैच कर रहे हैं कि नहीं. व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्री? 94. छोटे डेटा सेट्स में ट्री बड़ा एक्यूरेट होता है. 94.7% एक्यूरेसी आया डिसीजन ट्री इक्वेशन का. उसने zeros और 1 को करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया है. लुक एट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स यार, बार बार क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ट्री में कर लो. हाउ मेनी इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस आर देयर? हाउ मेनी इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस आर देयर? 10. नो, There's 0 and 1. नो. 1. Incorrect. 10 and 30. हाँ, total 40. आपका किसी का थोड़ा एक दो इधर हो सकता है, बिकॉज ये तो एक एल्गोरिथम है. फ्यू मिसेस हेयर एंड देयर विल ऑलवेज बी हैपनिंग. दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. Typically 40-41 are incorrect predictions out of 768. That is why the accuracy is very, very high. Sir, how to get this confusion matrix for tree? कुछ नहीं, आपने यहाँ तक करा हुआ है ना, इसको क्लिक करो. यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसको ट्री में क्लिक कर दो. इसे लेफ्ट साइड आ रहा है. And now I'll use one more algorithm called random forest.
When you take many small trees together, it's called random forest. रैंडम फॉरेस्ट में हम क्या करते हैं? रैंडम फॉरेस्ट में सपोज आपके 768 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं, तो हम रैंडमली 10 रोज ले लेंगे और 2 कॉलम्स ले लेंगे, रैंडमली 3 रोज ले लेंगे, 4 कॉलम्स ले लेंगे. हम रैंडमली रोज को भी पिक करेंगे और कॉलम्स को भी पिक करेंगे, और सबका आउटपुट एज ईच इज़ अ ट्री, सबका आउटपुट ले लेंगे, और जो मेजोरिटी है उसी को हम बोलेंगे यही एक्चुअल ट्रूथ है, यही आउटपुट है. Majority of many small decision trees is called random forest. So again, take it to prediction here. Okay? आप देखोगे जब भी आप लेते हो ना, एक रेड डॉट बड़ा फास्ट मूव करता है. That is called the data which is moving from one widget to another. Now pick on prediction. What is a random forest? It will always better than tree. Because small trees make a random forest. 90. अब ये जो आपका क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी आएगा ना, सबका अलग अलग आएगा. वो उसका रीज़न है कि रैंडम है, ये रैंडमली रोज और कॉलम सेलेक्ट कर रहा है, वो रैंडमली रोज और कॉलम सेलेक्ट कर रहा है, तो हर एक का अलग अलग रैंडम यूज हो रहा है. रैंडमनेस इज डिफरेंट. ओके, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं खुल रहा वो इसलिए कि आप जस्ट यहाँ पे एरो लेके आओ और वो एक और विंडो में खुल गया होगा यहाँ पे. वो ऑरेंज की एक और विंडो में आ गया होगा. नाउ क्लोज इट एंड लुक एट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑफ रैंडम फॉरेस्ट. हाउ मेनी एरर्स आर देयर? वेरी फ्यू एरर्स. सिंगल डिजिट में आ चुका है अब वो एरर्स. Again, depends on the data set. वो एक और विंडो में खुल गया होगा, वो नीचे आके देखो वो एक और उसमें आ गया होगा. नहीं. ओके, अब इसको क्या है कि सिंस विल बी यूजिंग मोर एल्गोरिथम्स, इसको थोड़ा सा आप ऊपर ले जाओ, लाइक दिस. Again, go to select columns. We'll choose one more algorithm, and a very old algorithm called naive Bayes. Naive Bayes is called very old algorithm. Again, it's a conditional probability of A given B. Condition probability में पढ़ाया जाता है. Thomas Bayes का algorithm है, Bayes theorem 1857 का है. What is the probability of A given B? So same naive is not the name. Naive मतलब बेचारा सा भला सिंपल सा आदमी, बिकॉज ये बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम है, इसको नाइव बायस बोलते हैं. इसलिए उसका नाम टॉमस बायस है. वैसे गो टू प्रेडिक्शन. व्हाट इज द एक्यूरेसी यू गेट हियर? या 61.8%. 61.8 point. The accuracy is not good. And when you look at the confusion matrix here, this is the confusion matrix. Incorrect are 165 plus 128 incorrect. Again close it. At least ये नाम आने चाहिए आपको एल्गोरिथम के. रिसर्च पेपर में नाम ही तो मेन इंपॉर्टेंट होता है. But sir, just one question. If we are doing the analysis, so how to identify which of these would be better? बिकॉज वो डेटा इतना कॉम्प्लेक्स होता है नॉन लिनियरिटी का, यू डू नॉट नो विच एल्गोरिथम विल फिट ऑन विच पर्टिकुलर डेटा सेट. सो दैट्स व्हाई वी ट्राई 8 एल्गोरिथम्स ऑन ऑल डेटा सेट. किसी में रैंडम फॉरेस्ट फिट होगा, किसी में नाइव बायस होगा, किसी में लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन डेटा सेट. So we have to show results of all these. Absolutely. Okay. And then we say कि based on my analysis, this is the best algorithm for this data, because the accuracy of this is this. Then you go for one more algorithm. ये नाम important है बस. K nearest neighbor.
सिंपल एल्गोरिथम है KNN, K नियरेस्ट नेबर. Again same thing, K nearest neighbor. They are all called classifiers. KNN, K nearest neighbors. K nearest neighbors. What is the accuracy of K nearest neighbor? 7.8. 67.8. And also not very good. Again look at the confusion matrix of KNN. 129 and 118. इसको थोड़ा और ऊपर कर सकते हो आप. Go for one more algorithm called support vector machine, SVM. Support vector machine. एक टाइम में काफ़ी अच्छा एल्गोरिथम है ये. Again go to prediction. What is the accurate? Poor. Also remember that whenever the data set is very small in size, for smaller data set like this is only 768 rows, typically tree and random forest will score much higher. When it becomes larger and larger, जब ये data set बढ़ता जाएगा तब आपके boosting algorithm ज़्यादा अच्छा करेंगे, like ADA boost, XG boost. One more question. How to identify that in this case, say for example, in logistic regression we are getting 58.5, in tree 94.8. So what is the ideal percentage that we take? That इससे ऊपर होगा तो it is good or less than that is not good? Well, for academic purpose, when you do that, you go for the highest accuracy because आपको पेपर में जस्टिफाई करना है कि why you have chosen a particular model that is based on highest accuracy. But in the real world application, typically 85 से ऊपर हम नहीं लेते. 85 के ऊपर is not very good because then it is a very overtrained model. Because उस particular data पे तो ट्रेनिंग हुआ है वो 768. So it is understood that data very well. पर थोड़ा सा नया डेटा में जब आ जाता है और वो पैटर्न चेंज होता है, then it will not be predicting very well. So it should not be very highly overtrained, nor it should be undertrained. So typically 85% is a right for making it live. It should not be overtrained model. मतलब वो डेटा को बहुत अच्छी तरह समझ गया है. किसको अच्छी तरह समझ गया है? उस सैंपल को समझा है वो. That will actually, we can say that it will मतलब वो आपके 100 क्वेश्चन का जो आपने दिया है चीट क्वेश्चंस, उसे थोड़ा सा बाहर कर गया तो बच्चा फेल हो गया वो. I believe जो biasness है concept है वो यहीं से आता है. हाँ, ट्रेड बाय बिल्कुल बायस वर्सेस वेरिएंस. But for academic research, highest accuracy. Then again you go for one more vector, one more algorithm called gradient boosting. इसको थोड़ा ऊपर और कर सकते हो. Gradient boosting. Again go for prediction. 89.5%. It's a ये सब एल्गोरिथम एडा बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग, रैंडम फॉरेस्ट, ये 2015 के बाद के एल्गोरिथम्स हैं. ग्रेडियंट बूस्टिंग एंड एडा बूस्टिंग आर बूस्टिंग एल्गोरिथम्स. बेसिकली वीक लर्नर वर्सेस स्ट्रॉन्ग लर्नर, कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स है सारे. 2015 के बाद के हैं ये. Whereas logistic regression is William Cox 1958, Naibok Bayes 1858. ये सब बड़े पुराने हैं. सपोर्ट वेक्टर भी 1960s का है. इसको थोड़ा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मेरे को, आपको भी करना पड़ेगा. Then go for one more ADA boosting. ADA boost. This will not give you the right answer. और सबका 100% एक्यूरेसी आ रहा होगा. ADA boosting. The reason is that ADA boost actually छोटे छोटे samples में लेता है and it needs a huge data set to give a proper answer. जो small data sets में हम ADA boost और even gradient boosting को use नहीं करते. Data set should be at least 10,000 rows for ADA boosting. बिकॉज वो छोटा छोटा डेटा सेट्स बना लेता है उसका और बूस्ट करता है वीक लर्नर्स को.
But still, for academic purpose, in research articles, don't take AdaBoost for if your data set is small. Again, ये थोड़ा और आपके कितने एल्गोरिथम्स हो गए अब तक क्लासिफिकेशन के? 5. यही 8 मेजर आपके मशीन लर्निंग क्लासीफायर्स हैं. Classification is basically when it predicts output 0 and 1. A function can predict 0 and 1. That is called classification. These are the major 8 classifiers. Just remembering the names of these classifiers is good enough. But हमें limited amount का neural network भी देता है Orange. So I'll also use one more. Now machine learning is over. I'll use neural networks. Go to neural network. और आपको न्यूरल नेटवर्क का दिख गया होगा कि लेयर्स बने हैं और न्यूरॉन्स हैं. एंड नाउ गो टू प्रेडिक्शन. व्हाट डू सी इन द प्रेडिक्शन? 70. सबका अलग अलग है, सेम है? 70.4. अच्छा, बट इन माई केस इट इज 59.1. What is the reason for that? About the layers or Yeah. internal configuration. But before that, you can also see the confusion matrix of all these things. सबका ही गया. Now, as we said, neural networks. As we said, neural networks allows you something called hyperparameter tuning, which machine learning doesn't allow you. Machine learning gives you fixed algorithms. Fixed formula है, तुक्का बैठ रहा है तो बैठ रहा है, नहीं तो आगे का रास्ता देख दूसरे algorithm को यूज़ कर ले. But neural network में we create our own function. We generate our own function. How? Very limited way you can learn in Orange. Go to here, double click here. And these are basically your hyperparameters. When you click on this neural network का गोलाई पे, तो ये आपको एक बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स ओपन कर देता है. What are the hyper parameters? First of all, it allows you only one layer. It doesn't allow you multiple layers. That is the drawback of Orange. Python where we can create multiple layers. It is allowing you only one layer. But you can design how many neurons will be there in that single layer. आपका कितना दिख रहा है? तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ. मे बी इसको मैं 300 न्यूरॉन कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझेगा. एक्टिवेशन फंक्शन. एक्टिवेशन इज बेसिकली ए वेरी सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन. टिपिकली ये फंक्शंस क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, स्टेप फंक्शन, ये होते हैं. बड़ी सिंपल मैथ्स होता है एक्टिवेशन फंक्शन. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सिग्मॉइड फंक्शन लॉजिस्टिक का, एक्टिवेशन फंक्शन या स्टेप फंक्शन. क्योंकि 0 और 1 करना है ना, तो इसमें से आप रैंडमली कोई भी चूज़ कर लो. ऑफ कोर्स इट कम्स विद लॉट ऑफ मैथमेटिकल प्रैक्टिस व्हाट टू यूज़ फॉर विच डेटा. सो लेट मी जस्ट यूज़ लॉजिस्टिक, सिग्मॉइड, सॉल्वर. सॉल्वर बेसिकली होता है कि जब आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है और वापस आप एरर को लेके जा रहे हो. व्हाट इज द एरर ऑफ द फाइनल आउटपुट? एक्चुअल माइनस द प्रेडिक्शन इज द एरर. एरर को आप वापस लेके जा रहे हो और वेट्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हो. तो हाउ मच वेट एडजस्टमेंट करोगे एंड विच फंक्शन इज डूइंग दैट, दैट इज कॉल्ड एडम ऑप्टिमाइजर. तो इसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स होते हैं जो इनपुट आउटपुट को कैलिब्रेट करते हैं. यू हैव एडम, यू हैव एसजीडी, यू हैव एडम इज द पॉपुलर वन. आई विल रिमेन विद एडम. देन देर कितने हो गए? फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड हाइपर पैरामीटर, थर्ड हाइपर पैरामीटर, फोर्थ रेगुलराइजेशन. दैट मीन्स जो आपका वेट्स हैं वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. लाइक यूजुअली इट इज़ डन इन डेसिमल्स. जो इनिशियल वेट्स हैं हम उसको 0.00005 करेंगे, 0.001 करेंगे, कितना एडजस्टमेंट करेंगे. एंड दिस ऑल्सो आई कैन एडजस्ट इट हेयर. लास्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस, कितने फॉरवर्ड कितने बैकवर्ड, कितनी बार ये इपॉक्स रन करोगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड. So these are called hyper parameters. This actually is pure at this stage.
when you are starting this entire concept, it is pure tukkabaji. You play around it till the accuracy increases. For example, I can increase the number of iterations forward and backward, या reduce करता हूँ इसको 500 कर देता हूँ. And again, now with all these changes, if I check my prediction कुछ खास चेंज नहीं हुआ, पर आप लोगों का प्रेडिक्शन कुछ चेंज हुआ चेंज करने के बाद? 59.2. रिड्यूस हो गया ना. नाउ द रीजन इज इट इज लाइक ए कप. वेन एवर यू इंक्रीज द हाइपर पैरामीटर, वो zigzag करेगा. समटाइम्स इंक्रीजिंग इट ओनली इज रिड्यूसिंग द एक्यूरेसी टिल इट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कप. इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग. जैसे आप गोल्फ खेल रहे हो, तो अगर यहाँ पे मैं हूँ और वहाँ पे मेरा होल है, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से मारूंगा तो दूर चला जाएगा, ज़्यादा धीरे मारूंगा तो पास ही गिरेगा. सो दिस एग्जैक्टली लाइक प्लेइंग ए गोल्फ. You can't randomly increase nor you can randomly decrease, but you can adjust this, which you can't do in machine learning. Now इसमें आपका final prediction में आप click करो. Forget that one वाला जो AdaBoost का है, which is giving you the highest accuracy. Highest accuracy किस में आ रहा है? नहीं, AdaBoost को ignore करो क्योंकि that requires a larger data set. Random forest. So whenever you want to make the project live, you will say that I am making the project live on this particular data set with random forest. Now that you have done this, आप इसको save करो, go to file, save as, give it some name, like just give the name as classifiers. And save it somewhere. Again, go to file, save as, कोई एक नाम दो like classifiers or whatever name you can remember, and it will save the file in this format .ows. That is the orange data mining format. After that, you just have to click on that saved file. वो अपने आप को ये पूरा का पूरा फ्लो खोल देगा. This saved, which means that जो हमने अभी करा वो आपका फाइनल एल्गोरिथम बन गया है. आप इसमें कोई भी डेटा को लाके चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दो बार सेव करना है. किस चीज़ को? नहीं, मैंने तो खाली इसको बोला कि इसको फाइल को करो सेव एज. फाइल नेम कुछ भी रखो, ये अपने आप OWC इसको सेव करेगा. दैट्स द फॉर्मेट. और सेव इन एनी ऑफ द फोल्डर्स. तो आपका पूरा का पूरा वर्कफ्लो सेव हो गया. हैव यू ऑल सेव्ड दिस वर्कफ्लो? ओके. नाउ आई वांट टू टेस्ट दिस मॉडल. सो गेट द फाइल हेयर अगेन. फिर से फाइल लाओ. I want to test this model. So again get the file here. Again get the file here and double click on this file. Go to this folder and pick up that pharma test data जो है, pharma data set new patients. This is totally a new patients which have come from a new sample. और उसको ओपन करो. You don't have to make any drug effective को data feature or target. This is a unknown data. Close it. तो ड्रग इफेक्टिव को चेंज करना है? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज अ फीचर फॉर मी. यू कैन डू दैट इफ यू वांट. यू कैन डू दैट. अगेन चेक ऑन द डेटा टेबल कि कौन सा डेटा आपने लिया है. क्या आपका ऐसा डेटा है? यस सर. इस डेटा में क्या है? सेम डेटा सेट है. नए ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वॉक इन टू द हॉस्पिटल, बट
फ़र्क ये है कि अब इनका पता नहीं इन पे ड्रग इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। लास्ट वाला जो कॉलम है वो क्या है? In fact, what you can do that, I'm not able to see that grade column. वापस आओ फिर, या यही क्लास है, एक क्लास यही में होगी। नहीं नहीं, एक और क्लास होगा। आप फिर आप वापस फाइल पे आओ और ड्रग इफेक्टिव को टारगेट बना दो, बेशक मेक इट टारगेट। ड्रग इफेक्टिव को लाइक यू डिड लास्ट टाइम, मेक इट टारगेट, ठीक है। अप्लाई, अब आपका ग्रे में आ जाएगा वो। अब आ गया ग्रे में। क्वेश्चन है कि ये अननोन डेटा है, हमें पता नहीं इन पर ड्रग इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। यही तो हमें प्रेडिक्ट करना है, यही तो प्रेडिक्ट करना है हमें। अब मतलब क्या है कि पहले एक पेशेंट आया, लुक एट द फर्स्ट पेशेंट, हिज एज इज 25, BMI इज 22.4, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, इंसुलिन सब कुछ है, लाल पैथ लैब से सारा टेस्ट करा के ले आया है, पर यह नहीं पता कि इस पर ड्रग काम करेगा कि नहीं करेगा। ये हमको प्रेडिक्ट करना है इस स्टेज में यूजिंग द मॉडल। दैट इज हाउ यू आर सेइंग यूज ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इन द हेल्थ केयर प्रेडिक्शंस। So I am predicting, I am not waiting for so many days. I'll simply predict कि इस पे काम करेगा कि नहीं करेगा based on that model which I have trained. So that's why we have put question mark here because this is unknown. ये 0 होगा कि 1 होगा, यही तो predict करना है हमें। इसको close करो। Where is my trained model? This is my trained model which is doing prediction. So take the file from here, data, and give it to prediction. So when you give this connector here, आप देखोगे जो ट्रेनिंग का डेटा था वो अपने आप ड्रॉप कर जाएगा। जो ट्रेनिंग का पाइप था अपने आप वो ड्रॉप कर जाएगा, बट दिस इज अ न्यू प्रेडिक्शन। सो आई हैव गिवन इट टू द प्रेडिक्शन विच इज अ ट्रेन्ड मॉडल। And now click on prediction. What do you get? Output आ गया सबका? So which output you will, because you don't know which is the correct output, wrong output, which output you will prefer? Which output you will prefer? Obviously you will pick up random forest because training and time उसने हमको best accuracy दिया था ना? So you will believe in random forest. Random forest का accuracy था 95 point something or whatever. So when you say that the very first patient जिसका ड्रग इफेक्टिव होगा कि नहीं हमें नहीं पता, उसका एक्चुअली ड्रग इफेक्टिव होगा 1. Based on this body conditions, the drug will be effective because so says random forest, but this is with 95% accuracy. Like in my case, 5% error भी आ सकता है। in my case, first patient it is saying that it won't be effective. हाँ, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट नो रैंडम डेटा था वो, इसलिए। So it has accurate, it has not accurately, to the degree of perfection of accuracy, it has predicted all these things. अब इसको रिमूव करो, जस्ट रिमूव इट। ये वाला पाइप को रिमूव करने के बाद वापस इसको सेम कंडीशन में ले आओ, सिलेक्ट कॉलम को प्रेडिक्शन में ले आओ, कनेक्ट, फिर से हम ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को। अब हमने टेस्ट कर लिया, वापस हम इसी स्टेट में ले आएंगे जैसे पहले था, और इसमें हमने प्रेडिक्शन जो किया था ये था, सबका इसी कंडीशन में आ गया वापस। द ट्रेनिंग डेटा विच हैड ड्रॉप्ड अगेन रिक्रिएट बिटवीन सिलेक्ट कॉलम्स एंड प्रेडिक्शन, सेम स्टेज जैसा था, जैसा क्या था वैसे ही आ गया ना। नाउ look at a data set which I have given you, which is the name of the data set is heart failure. Heart failure. एक मैंने दिया ना आपको डेटा सेट, हार्ट फेलियर, या हार्ट दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, हार्ट फेलियर।
ये हार्ट फेलियर है. अगेन इट इज़ अ टारगेट डेटा, मतलब इससे लेबल डेटा. व्हाट इज द साइज ऑफ द डेटा? साइज ऑफ द डेटा 300 डेटा सेट्स. 300 इवेंट्स हुए हैं हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया है कि दिस पर्सन डाइड एंड दिस पर्सन डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ हार्ट कंडीशन. ये एक्चुअल डेथ्स और सर्वाइव हुए हैं. डेथ का मतलब 1, सर्वाइवल का मतलब 0. 0 मीन्स द पर्सन सर्वाइव्ड. डेथ मतलब द पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. दिस डेटा सेट इज क्लियर. People who have died because of heart attack, people who have survived because of heart attack. Given these body conditions from A till L. Close it and again go back to the same orange. Now ये आपका saved file है already. Go to select columns. Not select column. Go to file. और इस folder में बड़ा सिंपल स्टेप्स है. नाउ चूज दैट केस विच इज हार्ट फेलियर और दैट डेटा हार्ट फेलियर. जस्ट पिक अप हार्ट फेलियर. और किसको आप टारगेट बनाओगे? डेथ इवेंट को. मेक दिस एज टारगेट. मेक द डेथ इवेंट एज टारगेट एंड से अप. ओके, सिंपल था. आपका डेटा टेबल में ये राइट. दिस अ न्यू डेटा सेट सेम उसमें आ गया. अब ये एरर 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 आने लग गया है. इज यू विल सी इट योरसेल्फ. क्लिक ऑन सिलेक्ट कॉलम्स. इसमें टारगेट ही नहीं है कोई. अब टारगेट हम किसको बनाएंगे? डेथ इवेंट को. बट क्रैश हो गया किसी का. Yes, sir. ओके, एरर अपने आप एलिमिनेट हो गया. सिलेक्ट कॉलम में जब करोगे तो डेथ इवेंट को तो एरर एलिमिनेट हो जाएगा. हो जाएगा. आप प्रेडिक्शन देखो. विच इज गिविंग द हाईएस्ट प्रेडिक्शन. खाली बूस्टिंग वालों को हटा दो. 1 को हटा दो. So we read books are हमने यहाँ पर death event को डेथ इवेंट आपका टारगेट बनेगा ना. आपने उसको इग्नोर कर दिया. ये तो आपका टारगेट वेरिएबल है. इग्नोर मतलब उसको एलिमिनेट कर रहे हो आप. अब क्लोज कर दो इसको. आप प्रेडिक्शन को क्लिक करो. नीचे आओ. नीचे आओ. 100% नहीं ये तो डेटा टेबल है. एक मिनट, आप एक मिनट वापस करो. 1-2 बार प्रैक्टिस का तो हो जाएगा. सिलेक्ट कॉलम्स. प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन. सिलेक्ट कॉलम्स इसको दिया. वो बाय द सेम कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे? एक नया डेटा लाओगे. उसमें क्या होगा? उस नए डेटा में होगा खाली डेथ इवेंट नहीं होगा और आप डेथ को प्रेडिक्ट करोगे. तो व्हाट इज द एक्चुअल यूज केस स्टडी ऑफ दिस स्टडी? नॉट इन दिस था. उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ये टेस्ट मतलब ये मॉडल रन किया था. ऑफ कोर्स इट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड. इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ओवर क्राउडेड होता है हमेशा बेड्स का. और हर एक बंदा आता है कि मेरा चेस्ट कंजेशन है और पैल्पिटेशंस है और पसीने आ रहे हैं, ये सब हो रहे हैं. तो हर एक को बेड नहीं दिया जा सकता. उनका खाली एक रिपोर्ट मांगा जाता है जिसमें बोल के बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह का करा के ले आओ. उसी ब्लड देते हैं और मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि ये मरेगा कि जिएगा. जो मरेगा उसको बेड दे देते हैं. जो जिएगा उसको बोलते हैं कि घर जाके एप्पल खाना शुरू कर दे, जूस पीना शुरू कर दे, एक्सरसाइज कर. बट
उसमें एक रिस्क है, उसमें एक एक्यूरेसी है. वॉट एवर मॉडल दे आर यूजिंग देर इज एक्यूरेसी. सेकेंडली सैंपल उन्होंने एक पर्टिकुलर क्लस्टर से लिया है, तो अगर बाहर आ गया तो इट इज़ आउटसाइड सैंपल. सो देर इज ऑब्वियसली कैवियट्स टू दैट, बट दिस इज वॉट इट इज़ अ वेरी यूजफुल, especially in overcrowded hospitals, where many people come, and one of the typical use case studies is tuberculosis in government hospitals, especially in the poor areas. Tuberculosis is a very common disease. तो उसमें वो कहते हैं कि तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस होगा कि नहीं होगा, based on this, and after that they will start treating you on priority, otherwise they'll discharge you. So obviously healthcare is, that's why very very great use case study. Now, this was all about healthcare. Similarly, मैंने आपको एक और डेटा सेट दिया है जो शिल्पी मैडम ने लास्ट टाइम कमिट किया था. वो मेरे को एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट देंगी, पर ऑब्वियसली नहीं दिया, और उसको मैंने एंटिसिपेट किया था, चांसेस वॉज हाई दैट नहीं आएगा. तो दैट्स व्हाई आई केम प्रिपेयर्ड विद दिस डेटा सेट. मॉडल हैड प्रेडिक्टेड दैट यू विल नॉट गिव. So what is this model actually? This model is basically employees. This model has taken 100 employees, right? और उनके various conditions को independent variables कितने हैं? Employee age, gender, department till salary, and finally K is the dependent variable which says कि the employee left or did not leave. दिस अ नोन डेटा, लेबल डेटा. तो पिछले 100 एम्प्लॉयज़ में हमको पता है कि पिछले साल कितने लोगों ने छोड़ के गए और कितने लोग टिके हुए हैं. जो टिके हुए हैं वो येस हैं, जो छोड़ के चले गए वो, जो टिके हुए हैं वो नो हैं, जो छोड़ के चले गए वो येस हैं. इट इज़ अ पैरामीटर, सो मेनी पैरामीटर्स हैव कंबाइंड, सो वी डोंट नो. क्लिक, वी रियली डोंट नो. टिके हुए हैं, तो हमें प्रेडिक्ट क्या करना है कि लोग छोड़ के जाएंगे कि नहीं आएंगे, एंड वी हैव टू मेक द मॉडल लर्न फ्रॉम दिस डेटा. Increase as many variables as possible. जो आपने किया था ऑरेंज फाइल, steps are very repetitive. File, flow तो सेम ही है. अब this flow is constant, flow is not going to change. हाँ, इसी सेम फाइल पे करोगे आप. ये तो फ्लो है, ये फाइल नहीं है, ये फ्लो है. इसमें खाली आपका डेटा चेंज होता रहेगा. द फ्लो इज सेम, द डेटा विल कीप चेंजिंग. ओनली द डेटा विल कीप चेंजिंग, द फ्लो इज सेम. अब आपका ये फ्लो परमानेंट हो गया. नाउ यू नो, यू हैव मास्टर्ड ऑल द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. यू कैन क्रिएट एनी रिसर्च पेपर. ऑल दैट यू नीड इज अ डेटा सेट, एंड विद इन सेकेंड्स यू विल गेट द आउटपुट, and then you have to generate a paper on that. Why you chose that particular model? Okay, so let us go to file again and go to this folder, and which data I will chase? Employee churn salary data set. Open, and किसको टारगेट बनाऊंगा? चर्न को. सिलेक्ट कॉलम्स में विच इज द टारगेट? चर्न. इग्नोर करूंगा बिकॉज एम्प्लॉई आईडी इज सीरियल नंबर 1 2 3 4. सीरियल नंबर, रोल नंबर्स, they are not a relevant independent variable. They don't contribute to the dependent variable prediction. क्या रोल नंबर, सीरियल नंबर से पता चलता है कि उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आएंगे? नहीं पता चलता ना रोल नंबर और सीरियल नंबर से. नाम से भी पता नहीं चलता, पिताजी के नाम से भी पता नहीं चलता, एड्रेस से भी पता नहीं चलता. सो दीज आर ऑल रिडंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच यू डोंट टेक इनटू द मॉडल. दे डोंट कंट्रीब्यूट. दैट्स व्हाई आई रिमूव्ड एम्प्लॉय आईडी, और चर्न इज द टारगेट. नाउ प्रेडिक्शन में किसका एक्यूरेसी हाईएस्ट आ रहा है?
I got the data. Can I share with you? हाँ दे दो. It's a go-kart company data, and it is वो probability Tree, to sir. leave. Tree. ये तो बड़ा सिंपल डेटा है. आप इसी डेटा को हाँ, उसी में इसके कर बाद दो, उसी में डाल उसी दो. में करके. बड़ा सिंपल है वो. उस This is probability to leave actually. That हाँ दैट इज नहीं, वो प्रॉबिलिटी टू लीव नहीं है. हाँ नहीं, actually sir, the job level, satisfaction, marital status. So we have to see that who will leave. हाँ बट एक्चुअली क्या होता है मैडम, मशीन लर्निंग में हम मशीन को लर्न कराते हैं एक्चुअल डेटा के साथ, जिसका लेबल हमको पता होता है कि इस बंदे ने छोड़ा है, इस बंदे ने नहीं छोड़ा लास्ट ईयर. तो फिर यहाँ तो prediction model है. मतलब ठीक है, इन्होंने तो डायरेक्टली प्रोडिक्शन ही दे दिया आपको, बट इट वुड बी आउटपुट ऑफ ए मॉडल जहाँ पे पर्सन को उसने छोड़ के गया था, नहीं छोड़ के गया था. द मशीन विल लर्न फ्रॉम द एक्चुअल डेटा विच इज कॉल्ड द लेबल डेटा. But in HR analytics we learned the predictive model, ना? आप प्रोडिक्शन मॉडल क्रिएट करते हो, यू क्रिएट ए मॉडल. That we have learned in the SPSS. हमने उसमें learn किया था सर उसको. आप इससे भी कर सकते हो, वो जो प्रॉबिलिटी टू लीव को ही एक्चुअली उसको ट्रुथ बना दो कि यही एक्चुअल है, छोड़ के गया है नहीं छोड़ के गया. बट इन मशीन लर्निंग वी नीड द एक्चुअल सुपरवाइज मॉडल. तो आपका आउटपुट आ गया, ये आउटपुट आ गया ना ये. Whatever, I mean, different models will give you different output. Now go to the file again, new file, and उसमें upload क्या करोगे? Employee churn test. Exactly. Churn is the target. Or when you see the data table, you will get something like this. Churn is question mark. Now, madam, what is the meaning of this data? This data means the HR has 10 employees who are joining today. ऐसा 10 एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई 1 से एम्प्लॉई 10, जिनका एज है, डिपार्टमेंट और सैलरी है. और इस दैट स्टेज हमको आज ही प्रेडिक्ट करना है ये छोड़ के जाएंगे कि नहीं छोड़ के जाएंगे. दैट्स व्हाई द चर्न इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क. We want to predict whether the person is going to leave or not. और ये कैसे होगा? हम उस मॉडल को देंगे जो ट्रेंड हुआ है लेबल डेटा पे. Same logic, take it to predictions and it will give you. Every algorithm will give you कि whether that person is going to leave or not. आ गया आपका output. It will give you the output whether it's going to leave or not. सर हमें ट्रैक करना है, यहाँ से करना है ना, इसी में फाइल में अपलोड किया था. क्या है आपका ये? इसमें आपने फाइल अपलोड. हाँ जी सर, ये चर्न टेस्ट नहीं है, एक्चुअल चर्न है. प्रेडिक्शन में वो एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करता है 0 और 1 के बीच में. तो 0.5 के ऊपर जाता है तो हम उसको 1 लेते हैं, 0.5 से जब नीचे आता है प्रोबेबिलिटी उसको हम 0 लेते हैं. सपोज हमें उस प्रोबेबिलिटी को अगर टेस्ट करना हो, प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, तो क्या इसी मॉडल में हमको चेंज. हाँ, तो जो बेसिकली जो आप यहाँ पे जा रहे हो, इसको जब देखो यहाँ पे, लेट मी शो यू, वो तो आ गया ना बेसिकली. इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, दोबारा ट्रेन करो मॉडल को और प्रेडिक्शन देखो, और यहाँ पे क्लासेस इन डेटा देखो. तो ये आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा है ना, 0.98 और 0.02. ये तो पूरा का पूरा सेव ही हो जाएगा आपका कट एंड पेस्ट करके. वो आपको एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दे रहा है. नहीं, मुझे लगा शायद कोई विजेट ऐसा हो जिससे हम इसको. नहीं, इसको आप सेव करना पड़ेगा. तो आउटपुट है, बिकॉज आपके रिसर्च पेपर में ऑल दिस थिंग विल कम एज द आउटपुट ना, इंक्लूडिंग द प्रोबेबिलिटी लेवल्स. ऑल्सो यू वुड हैव अंडरस्टूड सीन वन मोर थिंग. आपने एक और चीज़ देखा होगा, ये सारा आपका रिपोर्ट में आएगा. आपने देखा होगा कि टेक द आउटपुट फ्रॉम एनी विजेट, और उसमें जस्ट टाइप पाइथन स्क्रिप्ट. ओके, और ये आपको पाइथन का कोडिंग दे देगा.
अंडरलाइंग मॉडल्स आर वर्किंग ऑन पाइथन ओनली. ऊपर आपका ड्रैग एंड ड्रॉप है, पर नीचे पाइथन है. Whenever you are clicking something, Python codes are getting executed. One, two predictions, exclamation mark and cross over it. देखो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का तो पॉइंट ही नहीं है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन मैट्रिक तो खाली एक्चुअल और प्रेडिक्शन के बीच में है. इसमें तो एक्चुअल तो अब रहा ही नहीं कभी, खाली प्रेडिक्शन है. तो ये तो क्रॉस को आप इग्नोर ही करो. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ओनली फॉर द ट्रेनिंग स्टेज, नॉट एट द टेस्टिंग. आप इसको क्लिक करो प्रेडिक्शन, यहाँ पे आ जाएगा किसी और, यहाँ पे ऑरेंज पे लाओ, एक और पेज में आ जाएगा, ये आ गया आपका प्रेडिक्शन. आप इसमें एक्यूरेसी भी नहीं आएगा, क्योंकि तो एक्यूरेसी तभी आता है ना जब एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हो. जब एक्चुअली नहीं है, आप तो सीधा मॉडल को टेस्ट कर रहे हो, तो विल ओनली गेट द आउटपुट, एंड दैट इज़ व्हाट यू रियली वांट. क्योंकि आपको पता है कि वो कितने एक्यूरेसी में आया है. हाईएस्ट इज आप रैंडम फॉरेस्ट पिक करोगे तो आपको पता है कि 98%, 97% एक्यूरेट है. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स विल ओनली बी टेस्टेड व्हेन इट इज द ट्रेनिंग स्टेज, तब एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहे हो. Was it simple? You can do it very well now. सबका हो जाएगा बड़ा आराम से. रिसर्च पेपर वगैरह भी फ्लो आपने सेव कर ही लिया. इट इज़ यूजफुल फॉर एनीथिंग फ्रॉम फार्मा टू BBA, इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि हर जगह क्लासीफायर्स यूज होते हैं. द सेकेंड एल्गोरिथम विच वी विल बी सीइंग इज बेसिकली रिग्रेशन, बट नॉट टुडे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. Now look at this data. Look at this data. If मेरा टारगेट वेरिएबल ड्रग इफेक्टिव है तो ये क्लासिफिकेशन हो गया. अगर मेरा टारगेट वेरिएबल है कि कितने ड्यूरेशन तक वो ड्रग लेगा तो रिग्रेशन हो जाएगा, बिकॉज द आउटपुट इज अ नंबर विच इज चेंजिंग. सी द रोज, दे आर ऑल चेंज नंबर्स. Output will be any number, but it will definitely not 0 and 1. So the same data set, the business problem changes. Now the doctor says कि I want to say कि how many days the person should take to make the drug effective. तो मैं सारे 1 condition लूँगा और I will now start predicting by training the model on number of days. Similarly, if my target is drug dosage in milligram, अगर मेरा ये वाला टारगेट है कि कितना सॉल्ट का वो होना चाहिए मिलीग्राम में टू मेक द ड्रग इफेक्टिव, अगेन इट्स गोइंग टू बी रिग्रेशन, बिकॉज इट्स अ नंबर विच इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. सो वेन एवर योर टारगेट वेरिएबल इज अ नंबर विच इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, विच इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूस नंबर, इट इज कॉल्ड रिग्रेशन. वेन द टारगेट इज 0 and 1, yes and no, it is called classification. यूज़ अब अप्रोप्रिएट बिजनेस यूज़ के स्टडीज़ आप देख लो. टारगेट वेरिएबल क्या है? अगर नंबर है तो रिग्रेशन, अगर 0 and 1 है तो क्लासिफिकेशन. फर्स्ट ट्रेन द मॉडल, पिक अप द मॉडल विच हैज़ द हाइएस्ट एक्यूरेसी एंड देन टेस्ट द डेटा ऑन दैट मॉडल. एक्यूरेसी शुड बी मोर देन 85% at least. Machine learning, you can't play with the hyperparameters. Whatever accuracy comes, that's full and final. In neural network, you can do the hyperparameter tuning. So this part of AI is called prediction, number prediction. So we started with the concept ना, जब भी आप नंबर प्रेडिक्ट करते हो तो मशीन लर्निंग से यूजफुलनेस और कुछ है ही नहीं. जब आप टेक्स्ट को जनरेट करते हो तो जनरेटिव AI, और जब आप एजेंट है जो ऑटोनोमसली काम कर रहा है, एक टास्क कर रहा है, तो दैट इज एजेंटिक AI जो N8N कर रहा था. So these are the 3 generations of AI. So obviously when we are doing research for articles and all, especially when we are looking at pharma and all, तो उसमें generative AI का ज़्यादा वो नहीं होगा, prediction का ज़्यादा होगा. Generative AI is very useful in pharma in what? Can anybody tell me? How generative AI is very useful in pharma? आप जब नया ड्रग डिस्कवर करते हो तो you go through tons and tons and tons of research material
That's why it takes 5 years, 10 years for any new drug to come to the market. तो ये सारा का सारा जो रिसर्च आर्टिकल्स है ड्रग के बारे में, वो जस्ट गिव इट टू जनरेटिव एआई, इट विल एनालाइज इट इन विद इन मिनट्स. सो टाइम टू ड्रग डिस्कवरी इज़ मच फास्टर. सो आपको जो सॉल्ट का नया पैटर्न चाहिए या मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स चाहिए, इट स्टार्ट जनरेटिंग. So time to reach out to the market with a new drug is much faster using generative AI. Of course, agentic AI is more of a business function. So any questions related to this? आप तो एक ही दिन में मशीन लर्निंग के मास्टर बन गए सब. सर प्रैक्टिस करेंगे. एनी क्वेश्चन मैम? आपने उस दिन जो मेरे को बोला था, मैंने सीरियसली गौर किया, वो एक्चुअली मेरी कमी है. आई टेंड टू गो टुवर्ड्स जहाँ मेरे को इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स आने लग जाते हैं, एंड आई इग्नोर द अदर्स, एंड दैट इज ट्रूथ. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन मैम. So we keep on doing this. इसीलिए वो 25-26 की क्लास जो होती है ना मेरी बिजनेस एनालिटिक्स में, उसमें 8-9 बंदे रह जाते हैं, पूरा लास्ट सेमेस्टर तक रहते हैं, फिर ड्रॉप आउट नहीं होते, और वही 9 रहते हैं. सेमेस्टर आफ्टर सेमेस्टर आई सी दैट नंबर. नाउ आई रियलाइज व्हाट इज द पैटर्न. वो आ कहाँ से रहा है. वही 9 होते हैं जो उनका फटफट हो जाता है बहुत जल्दी. So if there are no questions, then we can wind up today. All right then, we'll see next time with regression and more data sets. But थोड़े complicated data set भेजो तो better होगा. Real world के data set भेजो तो ज़्यादा effective होगा, जिससे आपको कुछ usefulness भी लगे. All right, see you in the next class then. Bye bye.